Thank you very much. I'll start with one very one question that I always think about, that you both are natural collaborators. आप लोग 25 साल से ज़्यादा एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं. But how exactly did it start? जब पहली फिल्म की थी तो फिर कैसे वो शुरुआत हुई थी? In fact, when I was planning to Hera Ferry, I went. I had. Do you remember where the meeting was? I I'll know, tell you. near the Sea Rock Hotel. No. And you took me in a car. No. You and I had the first meeting. I'll tell you where, sir. B.R. Chopra's dubbing theatre. Okay, maybe I don't know. Yes, I'm telling you. I remember I was dubbing, and that time you came and you told me the whole little bit of this thing. Yeah, then. And then I told you, can I do the other role? No, this has happened. You took me in a car. You were driving me around. Okay. And I was telling that, okay, this is the role. I wanted him to play it. So natural concept, hero, heroine, Sunil's role. The whole thing I narrated, he said, I don't want that. I'll play the other role. The guy without the heroine. Yeah. So actually he wanted me to play Sham's role. Because उसमें heroine थी, ये था, सब कुछ था. So suddenly he said, no, I don't want to do this role. Let Sunil be the hero. I'll play that. I'll play the second fiddle to him. So I played Raju का role. तो पता है? ये पहली बार मुझे पता है. लेकिन ऐसा क्यों, मतलब आपने क्यों चूज किया कि राजू आप प्ले करेंगे? ये- Because obviously you were like ladies man and you were ruling. क्योंकि वो उसके अंदर वो मेरे को है ना, मैंने कभी ऐसा रोल नहीं किया था जो इतना बदमाश हो. मैंने हमेशा एक्शन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने हमेशा एक्शन, सीधा, धड़कन, ऐसे रोल किए थे, एक रिश्ता. तो लेकिन ये बदमाशी वाला रोल ना कभी नहीं किया था. तो फिर ये जब इन्होंने बता रहे थे, वो बहुत ही पैसों के पीछे पागल है, तो मैं बोला मेरे को कैन आई ट्राई दिस रोल. सो आई रिक्वेस्टेड that film. He behaved as himself in the role. Your comments on this, sir? comment what I say, if he said it, okay. So it's very natural, it comes out like that. राजपाल सर, आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने ये बोला था कि it doesn't matter for you if the role is small or big, but there are some directors जिनके साथ आप कुछ भी, मतलब कोई भी रोल दे दे, उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, and one of them is Priyadarshini sir. So what exactly is the foundation of that relationship? First time we met in कौन बनेगा करोड़पति set. Mishra ji and Bachchan Sahab, sir, I met sir. Very disciplined. Just one promo for कौन बनेगा करोड़पति. Then second time I met sir to Chennai for Hangama. And come Rajpal. मैं आया बहुत अच्छे से, मेरा सब फाड़ दिया. Yeah. And whatever happening here, don't worry, don't bother. Just you play like you just took one wonderful wicket. And that was my first beginning to sir. I asked her how cast you, how did you cast me? So I saw your Chandni Bar. No, I saw Jungle. Jungle, then Chandni Bar, this Tabuji's scene one, and after Hangama that first day till 2026, आज तक मैंने स्टोरी नहीं पूछी, आज तक सर से कोई सीन नहीं पूछा. फ्रॉम दैट डे और टुडे जब भूत बंगला तक मुझे पता ही अभी भी नहीं मालूम स्टोरी क्या है. क्योंकि इतना हैवान भूल गया. हैवान तक पाजी से मिला फर्स्ट टाइम, मुझसे शादी करोगे. पहले दिन इतनी मेरे साथ में वो सीक्वेंस नहीं आई, लेकिन होल डे एक्शन किया पाजी के साथ. और उसके बाद आज तक कभी भी इतनी कहीं बाल खींचना, कहीं ये करना, कहीं वो करना, प्रैंक करना, दिन भर गेम खेलना, जब तक सीन शूट ना हो जाए सर के साथ, तब तक लगातार सीन में कुछ ना कुछ लाइव रखना. अल्टीमेटली बॉस इज द बॉस. बट कभी आज तक ना स्टोरी ना कुछ भी नहीं पूछा. जहाँ भी आगे भी बोलेंगे तुम यहाँ खड़ा हो ना, आई बी देयर.
जी सर, दैट्स अ ट्रस्ट ओनली, नथिंग। सर वी वर विद एकता मैम फ्यू वीक्स बैक और उन्होंने बताया था कि जब वो स्क्रिप्ट लेकर गई थी सबसे पहले तो अक्षय सर के पास गई थी एंड देन शी spoke to you that she wants Priyadarshan sir to direct it. Then she also told us that there were few changes made in the script. वो जो changes थे वो किस level के थे? Was it in the story or just simple changes in the plot? No. Basically, the plot was interesting. What I did is, I was very particular. There should be some logic to the film. So we just added logic because you can't fool the audience. When they are watching, there should be some kind of a logic we should put into that. So we have changed few characters here and there, and created one flashback with. I should not say it's a flashback. Yeah. We added a character of Tabu into it. Okay, so this much we changed and put. See, I tell you, basically, people who come now, we believe in a lot of folklores, mythology. We believe in superstitions. It's a part of our culture in India. So those things we brought in and say that so that there is a logical support to the film. Okay, why this happened? Who is Vadasur? Why a Rakshas? How did he came? How did he become a demon? And what is his intention? How this could happen? So basically, the film is a fantasy. But even though it's a fantasy, logic is very important. So that's the only thing I changed. ये contradiction है थोड़ा कि fantasy में logic में contradictory. Yeah, because there should be a. मतलब ये बेसिकली क्या है, इन्होंने फैंटेसी के अंदर भी, जब आप कोई कॉमिक बुक भी पढ़ते हो उसके अंदर भी लॉजिक रहता है कि कहाँ से ये है, कहाँ से शक्ति आती है, माँ से शक्ति आती है, कैसे एक इंसान बदलता है, क्यों बदलता है, उसका रूप क्यों बदलता है, सबका एक लॉजिक होता है. See, in the beginning of the film, there is a sequence of where the professor is giving a lecture in Sydney seminar, where he is talking about what is happening in Bible, teletransportation. Same thing we have it here. That we also believe that one can send his soul into another person's body. So these things are mentioned, like quantum physics. All those things I just mentioned it so that it could happen. It's not that it can happen, it could. There's a very important line that you spoke while answering this, that you cannot fool the audience. और ये I think after the advent of social media this has happened कि बहुत ज़्यादा criticism या फिर कहें कि उसको dissect करती है audience, चीड़-फाड़ करती है हर चीज़ों की. एक ट्रेंड इस तरह का जो बन गया है, तो क्या उसकी वजह से डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स और big actors are they very very particular about all these small peak detailing or detailing that happens in the films कि ऑडियंस को वो कन्विंसिंग लगे, स्पेशली आफ्टर धुरंधर 2 में भी जो हमने देखा पूरा सोशल मीडिया पे रिएक्शन एंड द टर्म यूज्ड पीक डिटेलिंग. तो मैं कर रहा था शुरू में 3 दिन तक, द पीपल हु लाइक्ड इट दे वर राइटिंग दैट पीक डिटेलिंग इन द फिल्म, पीक डिटेलिंग. तो क्या फिल्म मेकर्स एंड आप जैसे बिग स्टार्स इन सारी चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा पर्टिकुलर हो गए डिटेलिंग के बारे में? सी देखिए, वो डिटेलिंग जो होती है वो राइटर से शुरू होती है, डायरेक्टर तक जाती है, डायरेक्टर से होते हुए सब कुछ जाके फिर एक्टर के पास आती है. तो जितनी भी डिटेलिंग होती है वो सारे राइटर और डायरेक्टर करते हैं. हमें बाद में तो पता चलता है कि क्या है. मैंने तो जैसे इन्होंने कहा कि मैंने पहले कहानी सुनी थी, लेकिन काफ़ी कुछ चेंज हो गया था इनके आने से. तो जो पीक डिटेलिंग की बात है वो इन्होंने की थी. Sir, the same question from you, that have filmmakers become very very particular about the small detailings in the film, which was not there in 90s or in early 2000. तो क्या आजकल ज़्यादा आप लोग particular? No, the reason is those days people used to come to see the film as okay, as it is not a question of what. In fact, they were coming to see and they never questioned the film. Either they liked it or they didn't like it. Today it's not that social media, all these people, so too many intellectuals started seeing the film and they started, but still I believe it's only a small percentage who does it. But the majority, that's why sometimes we are all shocked, some film we feel very stupid, but the film will do very well. Because people are not bothered, the people who are going to see,
See, our audience, we should understand one thing. Apart from the social media, there is a huge crowd who comes to enjoy the film and forget the film. They are the majority. They are glued to the film. They started talking about the film. So that's what I just saw an interview of Aditya or something, saying that, listen, when people are accepting the film, why do you criticize us? People have accepted. Such kind of acceptance we have never seen in any Indian film so far. So what is the difference between how people are accepting and how critics are? इवन इन धुरंधर ऑल्सो कई लोगों ने अपना अपना एक कमेंट देना है, किसी ना किसी को देना है कि ये ठीक नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था, प्रोपोगंडा है, ये है, वो है, सब है, चल रही है ना भाई पिक्चर, चलने देना है यार। और शादी के ऊपर, लव के ऊपर, जंगल के ऊपर, हॉरर के ऊपर, नॉवेल्स, पंचतंत्रा से लेके पार्ट ऑफ लाइफ, बचपन बच्चे थे वो उधर वो आ जाएगा, तो बैड एनर्जी, गुड एनर्जी, या जो भी है, ये अपने बुढ़ापे तक अगर एक आदमी को 4 किलोमीटर में अंधेरा कर दो, 4 पेड़ खड़ा कर दो, अकेला कर दो, वो डरने लगता है। ये आज भी है, तो वो डर, भय, ये लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ये जॉनर ऐसे हैं कि जितना भी इनमें एंजॉय करके आप बनाओगे तो शायद मज़ा ही आता है। अनुपम, आप भूत पे विश्वास करती हैं? करती? हाँ, बस ठीक है, बढ़िया है। So you आपको can never say that this film is fake. फिर तो आप बोल ही नहीं सकते ये, पार्ट ऑफ फिर तो कोई कुछ गलत बोल ही नहीं सकता। फिर देखिए, हमारा आई थिंक हम इसे मेरे हिसाब से 90% 90 से ज़्यादा ही प्रतिशत हम इसे हमारे हिंदुस्तान में भूत प्रेत या जादू ये वगैरह वगैरह सब चीज़ पे मानते हैं। सबका मानते हैं। अब जैसे बच्चे, तू मानता है जो भूत पे? मैं मानता हूँ कि बैड एनर्जी, गुड एनर्जी, एनर्जी तो होती है, हवा में होती है। नहीं, ये कह रही है इन्होंने देखा है भूत। मतलब एक्सपीरियंस तो मतलब आपने, अब जैसे आज जिंदगी के ज़माने में 12-13 साल की बेटी है, वो लगातार पूछे पापा भूत बंगला कब आ रही, क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट है। क्योंकि अब मैंने तो नहीं बताया उसको कि भूत तू क्या, लेकिन बच्चे जितना हम बचपन से देखना चाह रहे हो तो नहीं, उससे ज़्यादा जिंदगी के बच्चे काफ़ी देखते हैं, बिकॉज एंड दे आर आल्सो ग्लूड टू। हिंदी में भी जितनी आती है इस तरह की हॉरर कॉमेडी, दे आर बिग ऑडियंस, बच्चे जो काफ़ी बड़े ऑडियंस हैं, और इंग्लिश में भी काफ़ी ज़्यादा वो लोग देखते हैं इस तरह की हॉरर फिल्म। Now we'll talk about horror comedy, और you all have been pioneers of horror comedy in India, और अब ये एक बहुत ही हिट जॉनर बन गया है। तो कैसा फील होता है जब आप लोग को इस तरह के कमेंट्स सुनने को? We just started it. Yeah. Then the people took it. Others took over. We just started with Bhool Bhulaiya. But I always call it's not a horror film. It's a psychological thriller. So, but it's very, very nice psychology, I'll tell you. In a tense film, no, a little bit of small humor also works in a big way, because they are little tensed in the theater. So small sequence of humor will work. But in an out and out comedy, you have to really work hard on humor. The most difficult thing, this is something everybody has to accept. This I have suffered a lot making comedy films on this. And when I watch my own films, which has become huge hits, when I see it again, I don't feel like laughing. Then finally I think that, oh, it's gone. But in the theater, I see the response. Because 10 times you can't see the same scene. But there are people watching it 20 times, 30 times. This is the most difficult thing. And every time I get a shiver when I try humor and horror, or humor with thrill. It's very, very, very difficult. I can say that. I have to stop this business soon. I have to say. What business? This comedy business. Sir, you are जादूगर और comedy of error. ये both my teacher, दो लोग, इनके साथ 20 साल से काम करने का मौका मिला, और सच में इनको खुश करने के लिए नहीं, both are my teacher. एक बाजी के साथ में ये बंदा इतना इंस्पायर्ड है कि ये इनकी उम्र ना जीवन में कभी पता नहीं लगेगी कि इतने बड़े बच्चे की तरह पूरे सेट पे 20 साल पहले के जो अक्कीबाजी आज और 10 गुनी एनर्जी में और बच्चा बन के इनको काम करते देखता हूँ। इन फिजिकल फिटनेस के लिए, हर युवा के लिए क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, 4 बजे से लेके और रात के 9 बजे तक। ही इज़ द मास्टर।
जिससे मैं इतना खुश हूँ कि 20 साल में फिजिकल फिटनेस में मुदगल से लेके मैं भाई से इंस्पायर्ड हुआ। और सर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। इतने इंस्पायर्ड हुए कि आज इन्होंने मेरी टी शर्ट पहनी हुई है। हाँ, ये टी शर्ट इन्हीं की पहनी हुई है। कहीं भी हम दोनों दिन भर होते हैं तो तू इधर खड़ा हो जा, तू इधर खड़ा हो जा, ऐसे। अच्छा सुन, पीछे से बाल, अरे क्या ये चलता है सर। वी वर डूइंग हंगामा के बाद वी वर नॉट टॉकिंग, आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग हिम कि वॉट ही इज सर। बंदे राजपाल स्पीक इंग्लिश। तो सर आई एम हिंदी मीडियम बट आई एम अंडरस्टैंडिंग योर यू नो व्हाट यू वांट। नो स्पीक रॉन्ग इंग्लिश। स्पीक रॉन्ग इंग्लिश फर्स्ट टाइम। हाय सर, हाउ आर यू? नाउ बिलीव मी नामिका जी, अगर मैं लंदन में भी अकेले घूम जाऊं तो आई कैन कम्युनिकेट इजीली बिकॉज आई एम एन एक्टर। आई नो व्हाट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये हो पाया बिकॉज ऑफ दिस टीचर। मेरी भाई 5 भाषाएं जानती है, इंग्लिश मुझे नहीं पढ़ा पाई। No, I have gone through this with one more person. I was shooting the second ad of Virendra Sehwag. He had a problem with the language. So he was a little conscious, and then I said, you have signed by Sarai. What are you going to do there? Speak. Whether it is wrong or right or wrong, you speak. I met him after 2 years. Then he started speaking fluently. He said he was forced to speak. So if you are conscious that I can't speak, there is no other way. But now they all have to, because I cannot speak Hindi properly, but I can understand. I can even write and read because I studied it till 10th standard. But I can't speak fluently. So now that we are talking about language, in last few years, in India, people have come out of this colonial hangover and they have started accepting Hindi as our own language and with pride. But आप इसमें पायनियर हैं, आप गोविंदा जी, आप लोगों ने उस समय जब एक कहते थे कि हिंदी स्पीकिंग लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, उनको बहुत अप मार्केट नहीं समझा जाता था, आप लोगों ने ये शुरुआत की थी कि दैट यू ऑल कम्युनिकेटेड इन हिंदी। बैक इन 90s डिड यू फेस एनी बैरियर कभी कुछ इवेंट्स में? मैं तो हमेशा, कोई अवार्ड नाइट भी होता हूँ, मैं तो बोला भाई मैं हिंदी में बात करूँगा। मैं तो हिंदी में बात करता हूँ हमेशा। जहाँ भी कोई, मेरे बहुत सारे कॉन्क्लेव में भी जो होता है वो अंग्रेज़ी वाले कॉन्क्लेव होते हैं, मैं उसके हाथ जोड़ के बोलता हूँ भाई तू हिंदी में बात करियो, मैं हिंदी में बात करूँ। मेरी समझ में नहीं आता, जैसे ये तो कोशिश भी करता है अंग्रेज़ी की, मतलब मैं कभी कभी निकल जाते हैं। आप तो जानते हो ना। हाँ भाई, लेकिन आप तो जानते हो, लेकिन कंफर्ट मेरी जो है वो नेचुरल। बाजी एक बार बताओ, जैसे मैं अपन 250 लोगों के बीच में आई स्टार्टेड विद प्रियंक सर, रामू जी, सब लोग। आज 25 साल में बिलीव करिए देयर आर 250 पीपल ऑन द सेट। कोई पंजाबी, कोई तमिल, कोई मलयाली, कोई आसामीज, कोई बंगाली, कोई हिंदी, कोई 200-250 मराठी, गुजराती, सब एक मिक्सचर होता है। और वो मिक्सचर के बीच में सच में कभी भी लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। मुझे तो आज तक कभी नहीं, सब चीज़ों में ऐसा लगता है कि पंजाबी इधर चल रही, मराठी भी इधर चल रही, गुजराती भी इधर चल रही, हिंदी भी इधर चल रही, इंग्लिश भी इधर चल रही, जो जैसे चाहता है कि सिनेमा इज कम्युनिकेटिव और कम्युनिकेशन। और मुझे लगता है आज तक कोई भी कम्युनिकेशन, किसी से कोई सिंगल मूवमेंट की समस्या नहीं मुझे। We have few minutes left now. Well, I'll quickly ask two questions. Sir, we were talking about Dhurandhar. आप लोगों ने खुद प्रेज किया, and the way the people are going to theaters, and not only Dhurandhar but Bhoot Bangla का भी actually लोग honestly they are waiting, and because अब लोगों का collaboration है. But do you think the current, like if you see the audience footfall in theaters for past 2-3 days, and there are 3 weeks window, तो उस 3 week का window sufficient होगा for Bhoot Bangla, because this is also such a huge film. So, 3 वीक का सफिशेंट होगा नहीं होगा, ये तो वक्त के हिसाब से ही पता चलता है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि धुरंधर इतनी चल रही है और इतने बड़े फुटफॉल आ रहे हैं। हमारी हिंदी सिनेमा को कहाँ से कहाँ लेके गया ये फिल्म, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। 3 हफ्ते काफ़ी होते हैं, 21 दिन की बात कर रहे हैं हम। सो आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी अ प्रॉब्लम विद दैट। एंड वो जॉनर अलग है, ये जॉनर अलग है। ये फैंटेसी, हॉरर, कॉमेडी है, वो रियलिज्म पे है, वो एक्शन है।
वो एडल्ट फिल्म है, ये फैमिली फिल्म है। Children also. चिल्ड्रन। और एक छोटी सी लाइन बोलूँ, एक तरफ कोई मिल गया चल रही थी, एक तरफ हंगामा चल रही थी, दोनों महीने महीने नहीं उतर रही थी। हेरा फेरी उतरने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि और भी तो मतलब फिल्म ऑडियंस। ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि सारी फिल्में चलें, जी। इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है, आप लोगों के लिए अच्छी बात है, आप ज़्यादा इंटरव्यू कर पाएंगे। अगर फिल्म इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो फिर कहाँ करेंगे। We are really eager to know about present status of Hera Fairy. That is where कि 10 फिल्म है जिसका सबसे ज़्यादा रिपीट वैल्यू है, उसमें से उन 10 फिल्मों में एक Hera Fairy। So because We are at present we are in a little bit of darkness, and we are trying to see where the light is. That's the position for many reasons. Legal and a few things has to be sorted out. Then we will proceed with that. We are waiting patiently for those things to settle in a nice way. So and this before we end, there's one question जो कि थोड़ा फिल्म से हटकर है, जैसे कि कॉन्सर्ट्स जो है वो लगातार कैंसिल हो रहे हैं। जैसे आज न्यूज़ है कि शकीरा कौन सा? शकीरा का जो कॉन्सर्ट है वो आज कैंसिल हो गया। इससे पहले कानी वेस्ट का कॉन्सर्ट है वो भी। हमारे लिए तो फिर फिलहाल तो सिनेमा है, सिनेमा सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एंड आई होप हमें से ये जो कॉन्सर्ट्स हैं, ये जो हो ये चलें अच्छे, सबका धंधा चलना चाहिए। फ़िलहाल तो जैसे आपने कहा, ये वॉर की सिचुएशन में सबका धंधा चौपट है। जस्ट वी प्रे दैट एवरीथिंग कम्स अप, दैट्स इट। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। शांति मिले, पूरे देश विश्व में शांति।